Now one by one we are going to study structure of microsporangium, where the microsporangium is formed, how the formation of microsporangium takes place. We had studied the structure of anther. Anther is a part of stamen. Now where the microsporangium is present, how it is formed. This one is anther. Listen children, this one is anther, and it is divided by connective into how many chambers? 2 chambers. In each chamber there is a 2 microsporangium. Microsporangium is a sac-like structure where the formation of pollen grain takes place. Now we will see how the microsporangium will be formed. See, this one is primordium. What I called it as primordium. Primordium is a very basic originating structure from where the different parts of the plant will originate, and it has a cells. The cells have the ploidy level 2n. क्या ploidy level है इसकी? 2n. Means diploid in nature. ये cells है और ये जो है ये क्या हो गया? बना ये लीफ primordium. From this primordium यानी बेसिक स्ट्रक्चर, हाइपोडर्मिली, हाइपोडर्मी पता है, हाइपोडर्मिस मीन्स लोअर पार्ट, लोअर लेयर of the epidermis. Hypodermally arises special cell. देखो बच्चों, ये क्या है? लीफ प्रीमोर्डियम. नाउ नेक्स्ट स्टेज, फ्रॉम दिस लीफ प्रीमोर्डियम या प्रीमोर्डियम, राइट हियर प्रीमोर्डियम कैसे अराइज हो रहा है? हाइपोडर्मली. हाइपोडर्मली मीन्स दिस स्ट्रक्चर विल बी सेम, बट कुछ नया फॉर्म हो रहा है, कुछ स्पेशल फॉर्म हो रहा है, एंड दैट स्ट्रक्चर इट इज नोन एज आर्केस्पोरियम. कौन सी स्पेशल सेल अराइज हो रही है? आर्केस्पोरियम. देखो बच्चों, ये लीफ प्रीमोर्डियम, ये ऐसा लीफ प्रीमोर्डियम है, ये सब सेल्स हैं. लेकिन 4 कॉर्नर से, दिस सेल्स अराइज फ्रॉम द 4 कॉर्नर्स ऑफ द प्रीमोर्डियम. ये पूरे डिप्लॉइड सेल्स है. आर्केस्पोरियम इज आल्सो डिप्लॉइड. आर्केस्पोरियम इज आल्सो नोन एज आर्केस्पोरियल सेल. उसको हम कौन से सेल कहेंगे? आर्केस्पोरियल सेल. अब देखो, यहां से 4 कॉर्नर से एक स्पेशल सेल अराइज हो गया. दिख रहा है ये सबको? ये क्या हो गया? 4 कॉर्नर से 4 सेल अराइज हो गया. ये दिख रहा है ना सबको? एक नया दिख रहा है. This cell arises from the 4 corners of the primordium and they are specialized, and this cell it is known as archaeosporium or archaeosporial cell. Now what happens next? This archaeosporial cell will divide into 2 parts. Which one? Only archaeosporial cell. It is divided into 2 parts. Again, this is this one is primordium, और यहाँ से बाकी की सेल्स में ड्रॉ नहीं कर रही हूँ. यहाँ पे अब क्या हो गया? ये आर्केस्पोरियल सेल एक था. ये सेल कहाँ पे था? 4 कॉर्नर्स में था. ऐसे ये 4 कॉर्नर से ये आर्केस्पोरियल सेल डिवाइड हुआ. ये डिवाइड हुआ तो इसने डिवाइड करके कितना बनाया? इट विल फॉर्म 2 सेल्स. अगर कोई 2 सेल्स है तो 1 विल बी आउटर एंड 1 विल बी इनर. तो यहाँ पे डिवाइड हुआ, दिस आउटर सेल बना और दूसरी कौन सी बन गई? इनर सेल. यहाँ बन गई है इनर सेल.
outer cell it is known as parietal cell. कौन सी सेल कहेंगे हम लोग इसको? parietal. और इनर सेल को हम क्या कहेंगे? स्पोरोजिनस सेल. Then what will be the function of this parietal cell and sporogenous cell? Parietal cell will be protective in nature and it form the wall of the microsporangium. What is the function of sporogenous cell? Sporogenous cell will form the microspore mother cell. Microspore mother cell will form the microspore, and microspore will form the or develop into interchangeably. It will develop into pollen grain, and pollen grain is the precursor of male gamete. It will help in the formation of male gamete. Now see how this parietal cell is helpful for the formation of, how it takes place for the formation of sporangium. देखो बच्चों, this is the structure of microsporangium. किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ मैं? माइक्रोस्पोरेंजियम. ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम है. से कितने माइक्रोस्पोरेंजियम रहेंगे पोलन एंथर के अंदर? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम. यहाँ पे जो हमारा क्या था, एक parietal cell. ये सेल, this cell is divide, redivide and form a number of layers, 3 to 4 layers. And which one? Inner cell. Inner cell is sporogenous cell. It will divide, redivide mitotically first and then form a sporogenous tissue. उसने क्या फॉर्म कर दिया? स्पोरोजिनस टिश्यू. अब देखो यहाँ पे ये parietal cell जो था, देखो बच्चों, ये आर्केस्पोरियम. लिसन, दिस सेल सपोज इट इज आर्केस्पोरियम. ये आर्केस्पोरियम का क्या हुआ? डिवीजन. डिवीजन कैसा हुआ? माइटोटिक. मीन्स माइटोटिक हुआ तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी सेम. डिप्लॉयड इन नेचर. दिस इज ऑल्सो डिप्लॉयड एंड माइटोटिकली डिवाइड हुआ तो इसने क्या फॉर्म किया? 2 सेल. 2 सेल में से आउटर कौन सा था? parietal सेल. इनर कौन सा था? स्पोरोजिनियस सेल. इनर वन इज स्पोरोजिनियस सेल. एंड दिस parietal सेल, ये parietal सेल क्या फॉर्म करेगा? माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल. ये क्या फॉर्म करेगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल. अब देखो कैसे फॉर्मेशन होता है. दिस parietal cell divide, redivide 2 to 3 times and form a number of layers. How many layers? 3 to 4 layers. Outermost layer is single layer. एक साइड बस मैं ड्रॉ करके समझा रही हूँ. दिस वन आउट. ये सब जगह रहेगा. यहाँ पे भी आर्किस्पोरियम है. Here also archesporum is there. Means parietal cell and sporogenous cell is also available in the rest of the 3 places. Here, outer layer, it is also called epidermis. What it called? Epidermis. जो हम सब जगह हमेशा प्लांट के अंदर outer layer को हम लोग क्या कहेंगे? Epidermis. Without intercellular spaces. कंटिन्यूअस लेयर बिलो द दिस वन, इसको हम क्या कहेंगे? एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के नीचे फिर से वो सेल्स डिवाइड हो रही है और उसने क्या फॉर्म किया? एक बैरल शेप की सेल्स के जैसा सिंगल लेयर ऑफ सेल्स. इट इज नोन एज एंडोथेशियम. इसको हम कौन सी लेयर कहेंगे? एंडोथेशियम. ये सेल्स ऐसा बन रही है, सिंगल लेयर. ये ऐसा हो गया. ये कौन सी हो गई? एंडोथेशियम. अब एंडोथेशियम हो गई. इसके अंदर 2 to 3 लेयर्स तक यहाँ पे फिर स्पेशल टाइप के सेल्स हैं. वो कौन कर रहा है? सिर्फ डिवाइड. अपर सेल्स डिवाइड करते जा रहे हैं, आगे की सेल्स बढ़ा रहे हैं और आगे की सेल्स बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? सेल्स का डिपोजिशन हो रहा है. एंड डिपोजिशन हो रहा है तो क्या हो रहा है? एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है.
कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है? माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या होगा माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोर क्या है? ये क्या कर रहा है आगे जाके? पोलन ग्रेन फॉर्म करेगा। पोलन ग्रेन क्या होगा? मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा एंड इट विल हेल्पफुल इन टू एंश्योर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। यानी ये सब कहाँ हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ये एक नहीं है, कितनी रहती है? 2 to 3 लेयर्स फाइब्रस रहती है। ये फाइब्रस इस तरह से देखो बच्चों, ये हो गया मिडल लेयर। ये क्या हो गया? मिडल लेयर। अब ये मिडल लेयर जब हुआ, ये पूरी क्या हो गई है? ब्लैक कलर से जितनी सेल दिख रही है मिडल लेयर। डिपोजिशन ऑफ सेल्स हुआ, 2 to 3 लेयर्स हो गए। तो ये दिस 3 इंक्लूडिंग ये तीनों मिलके क्या बन गए? ये प्रोटेक्टिव नेचर हो गए और ये बन गए वॉल ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। सबको समझ में आ रहा है? अब देखो इसके अंदर में अब हमारी और एक लेयर माइक्रोस्पोरेंजियम जी का स्ट्रक्चर जो है, इसके अंदर कौन से लेयर्स हैं? इसके अंदर सबसे पहले मैंने क्या बताया? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद मैंने क्या बताया? एंडोथेशियम। एंडोथेशियम के बाद क्या आ गया बच्चों? मिडल लेयर। मिडल लेयर के बाद अल्टीमेटली द फोर्थ वन एंड इनर मोस्ट ऑफ द फोर्थ वन इज द टैपेटम। मोस्ट important layer tapetum. Now see, अब टैपेटम को हमको निकालना है। देखो बच्चों, ये टैपेटम दिस वन, यहाँ पे ये और स्पेस हम ऐड कर देते हैं। ये हो गया टैपेटम। टैपेटम इज हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म। कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखो, नीट में आता है क्वेश्चन, देन बोर्ड एग्जाम में फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टैपेटम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हो गया टैपेटम। टैपेटम सबसे पहले क्या है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम विच सराउंड्स, किसको सराउंड कर रही है? विच सराउंड्स, अंदर में बैठा है ये क्या है? स्पोरोजीनियस सेल। यानी इसके अंदर क्या था? स्पोरोजीनियस सेल था। ये पैरेटल सेल डिवाइड हुआ तो आगे चले जा रहा है तो सेल्स अंदर गए। स्पोरोजीनियस सेल कहाँ गया? इनर मोस्ट सेल। ये स्पोरोजीनियस सेल भी हैविंग डिप्लॉयड इन नेचर, 2 एम्प्लॉयड लेवल, इट इज डिवाइड रीडिवाइड एंड फॉर्म स्पोरोजीनियस टिश्यू। इसने क्या फॉर्म कर लिया बच्चों? स्पोरोजीनियस टिश्यू। ये बन गया स्पोरोजीनियस टिश्यू। और टैपेटम क्या कर रही है? इट सराउंड्स द स्पोरोजीनियस टिश्यू। किसको सराउंड कर रही है? स्पोरोजीनियस टिश्यू को सराउंड कर रही है। ये देखो, ये हो गया स्पोरोजीनियस टिश्यू। यहाँ पे हम लेबल कहाँ करें? ये देखो यहाँ पे ये स्पोरोजीनियस टिश्यू। यानी हमने जो स्टार्ट किया था कि एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम से अंदर तक हम लोग कहाँ तक ट्रेस किए हैं? स्पोरोजीनियस टिश्यू तक। अब देखो, ये जो सराउंड कर रही है टैपेटम, इनर मोस्ट जो है, यानी जो पहले 3 है, विच वन? एपिडर्मिस, एंडोथेशियम एंड मिडल लेयर। All these 3 layers will provide the protection to the microsporangium as well as the developing pollen grain. Means indirectly to the male gamete. Yes or no? Now, what this one, last one, that is tapetum. Tapetum function, it will act as a providing nutrition to the sporogenous tissue. Now, we will be discussing with the functions of tapetum, which is most important regarding the board exam as well as NEET.
अब देखो टैपेटम का क्या क्या फंक्शन है। फंक्शंस ऑफ टैपेटम, ये कैसा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही है, मैक्सिमम टाइम आया हुआ है। 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट्स आप लिखो, 2 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट्स आप लिखिए। फंक्शन फर्स्ट, it will provide nutrition to the sporogenous cell as well as microspore mother cell, then microspore, क्योंकि एक से ही दूसरा बना है, एक के बाद एक का फॉर्मेशन हो रहा है। माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर के बाद क्या आ गया, पोलन ग्रेन। कैसे, ये मैं समझा रही हूँ। सेकंड फंक्शन, इट प्रोवाइड एंजाइम कैलेज, नीट के लिए इंपॉर्टेंट कौन सा एंजाइम है, कैलेज। किसके लिए, फॉर डिसोल्यूशन ऑफ कैलोज। अब ये कहाँ पे आएगा, कैलोज, थोड़ी देर बाद हम पढ़ते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ कैलोज। थर्ड, इट प्रोवाइड यूबिश ग्रैन्यूल, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग द नीट एग्जाम। विच कॉल ग्रैन्यूल्स है, यूबिश ग्रैन्यूल फॉर formation of sporopollenin, sporopollenin। अब ये स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, ये भी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, एक एक स्ट्रक्चर आएगा तब ये सब टर्म्स आएंगे। स्पोरोपोलेनिन, इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज अ पार्ट ऑफ पोलन कीट। अब ये पोलन कीट क्या होता है, एंटामेफिलस फ्लावर्स होते हैं, एंटामेफिलस फ्लावर्स यानी जो इंसेक्ट के तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो इंसेक्ट के ऊपर बैठेंगे, तो इंसेक्ट के ऊपर बैठेंगे तो क्या लैंड करेंगे, वो पोलन ग्रेन्स इधर से उधर जाएंगे। तो जो फैटी सब्सटेंस होता है कहाँ पे रहेगा, ये पोलन ग्रेन्स में, वो क्या है, पोलन कीट, जो अटैच होता है इंसेक्ट्स के स्टिंग में रहो या लेग्स में रहो, इसके लिए। तो ये क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट हो रहा है, पोलन कीट का। देखो फंक्शंस ये क्या क्या प्रोवाइड, अगेन वी आर रिवाइजिंग दिस फंक्शंस ऑफ टैपेटम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। फर्स्ट, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, स्पोरोजिनियस सेल। अभी हम लोगों ने पढ़ा स्पोरोजिनियस सेल से होता, कहाँ से आया, ये आर्किस्पोरियम से। ये स्पोरोजिनियस सेल क्या करेगा आगे जाके, अब हम पढ़ेंगे। माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन किया,